का जो मैं वचन शेयर करूंगा, आज का दिन परमेश्वर यहोवा ने बनाया है। पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं। 1871 समय का बात है जो वो घटना को शेयर कर रहे हैं, और ये परमेश्वर का बहुत बड़ा एवेंजलिस्ट है, परमेश्वर का दास है, जो अमेरिका में ये घटना हुआ था उनके जीवन में, तो वो टेस्टिमनी दिए हैं। अच्छे से थोड़ा सुनिए। उनका नाम है D.L. मूडी। ये हम चर्च हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये 100 साल से ज़्यादा समय पहले वो जी रहे थे और परमेश्वर का काम अद्भुत रीति से कर रहे थे। The world has yet to see what God can do with a man who is fully consecrated unto Jesus Christ. An English preacher named Henry Varley said those words to me many years ago, and I tried my best to be that man. Let me tell you a story. I was preaching in my church in Chicago, and I did a series on the life of Jesus Christ. Oh, I love to preach about Jesus Christ. I started the series, and I preached about his birth. I preached about his childhood. I preached about him choosing his disciples. I preached about how he healed the sick, raised the dead, and opened the eyes of the blind. It was in the fall of the year. I came down to where I was preaching from Matthew chapter 27 and verse 22, which says, Pilate saith unto them, What shall I do with Jesus, which is called Christ? And they all say unto him, Let him be crucified. The crowd was getting restless that night. There was a commotion going on outside the church. And I said to the people, You have been faithful to come all these weeks during this series. I'm not going to give you an invitation tonight. But I want you to go home, and I want you to think about that question that Pilate said. What shall I do with Jesus, which is called Christ? Now you can go home. That night was October the 8th, 1871. And I turned 2,000 people out into the Great Chicago Fire. When I stepped out of the church, it was like I stepped into hell itself. Women were screaming for their children. Fathers were gathering their families together. Horses were running wild in the streets. And the flame and the sound of the fire sounded like a freight train roaring through the city. I got my family out to the outskirts in a safe place, and I went back into the city to see what I could do. But you couldn't do anything. The heat and the smoke were too great. I made my way over to Lake Michigan, to the shoreline, and I stood there that night, and I watched as Chicago burned to the ground. The next day, when I was able to go into the city, I went by the YMCA building that I built. It was gone. I went by Farwell Hall. Gone. I went back to the church. It was gone. And I made my way through the rubble of that church, and I stood where the pulpit was, and I said, Oh, God, I wish I could have those 2,000 people here one more time so I can ask them what they would do with Jesus Christ. Some of those people I never saw anymore. I made a holy vow to God that day that I would never preach the gospel without giving folks an invitation to come to Jesus Christ. Now I'm here tonight to tell you something. You are going to make a decision what you do with Jesus Christ. You are either going to accept him or you're going to reject him. You're either going to say, Lord, thy will be done, or you're going to say, Lord, my will be done. Now I ask you a question tonight. Will you be the one that the world would finally see with a life that's totally surrendered to Jesus Christ? अक्टूबर का घटना था। वो एक जगह पे प्रचार कर रहे थे और बोल रहे, चिकागो शहर में 2000 से ज़्यादा लोग थे। मैं प्रचार कर रहा था और मैं संडे जब एक सीरीज़ बनाते हैं, जैसे कि हम लोग कभी कभी शेयर किया है, एक मैसेज को भाग करके 4-5 संडे करके प्रचार किया है एक टॉपिक को। तो ऐसे वो यीशु मसीह के जीवन कहानी के बारे में वो सीरीज़ बनाए थे, प्रचार कर रहे थे।
यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का फिर मिराकल्स जो मिनिस्ट्री किया, फिर उसके बाद वो ऐसे पॉइंट में आए 4 हफ्ता के बाद 5 नंबर पॉइंट में आए कि पिलातुस कहता है यीशु मसीह को पकड़ के, लोगों को देखकर कि ये यीशु मसीह जो तुम लोग यहूदी का राजा बोलते हो, उसके बारे में आप क्या बोलते हो या क्या किया जाए उसके बारे में। वो जो राजा ने उनको बोल रहे हैं लोगों को, तो आप क्या करना चाहते हो उसके जीवन में, आप डिसीजन दो। तो उनका कहने का मतलब कि वो चर्च को बोले तुम लोग जाओ, ये बारे में आप भी व्यक्तिगत रूप से डिसाइड करके वापस आओ कि यही यीशु मसीह के बारे में आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। तो ऐसे करके एक्चुअली एक परमेश्वर का दास है, उनका नाम जिम सिम्बाला, ये किताब में बहुत अच्छे से लिखा है। ये बोलने के बाद लास्ट सॉन्ग होता है, जस्ट लास्ट सॉन्ग हो रहा था और तीसरा चौथा स्टांजा वो लोग गा रहे थे और चिकागो शहर में आग लग गया। जब आग लग गया, बहुत बड़ा भयंकर रूप से आग लगा, 30,000 से ज़्यादा लोग बिखर हो गए, बहुत सारे घर जल गया, 300 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मर गए उसी दिन। तो पास्टर ने, ये जो डीएल मूडी थे, वो नीचे उतर के आए, देखे कि चारों तरफ सिर्फ आग का धुआं हो रहा है, हॉर्स इधर उधर घूम रहा है, लोग इधर उधर अपना डैडी मम्मी वो चिल्ला रहे हैं, सब बच्चे, है ना। तो वो जो बिल्डिंग को वो खुद बनाए थे, YMCA बिल्डिंग, वो बिल्डिंग को गए, देखे कि वो भी नहीं है, उनका चर्च को गए, नहीं है। तो उसके बाद वो धीरे धीरे नेक्स्ट डे में वही पुलपिट को आए और वो परमेश्वर से एक वादा किया कि और मैं कभी भी ऐसे संदेश नहीं दूंगा कि संदेश के अंत में मैं लोगों को अल्टर कॉल नहीं दूंगा या वो लोगों को निर्णय लेने में मैं बिना बोल के मैं ख़त्म नहीं करूंगा ये मैसेज। मैं उसी दिन लोगों को वो ये बोलूँगा कि यीशु मसीह के बारे में तुम अभी क्या निर्णय लेना चाहते हैं, अभी डिसाइड करो। उसी दिन से वो हर समय जब भी मैसेज बोलते हैं, वो लास्ट में यही बोलते हैं कि आज तुम क्या निर्णय लेना चाहते हो। ऐसा लिखा है, द गॉस्पेल इज टू इम्पोर्टेंट टू बी लेफ्ट फॉर टुमारो। सुसमाचार कल के लिए छोड़ना ये संभव नहीं है। जब सुसमाचार सुनते हो, जब वचन तुम सुनते हो, आज तुमको निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि कल क्या होगा हमको पता नहीं, हमारा जीवन कल क्या होगा हमको पता नहीं। आज हमको निर्णय लेना पड़ेगा। ओके, आज ये वचन सुनेंगे, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। भजन संहिता 118 का 24। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, आज वह दिन है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन, हम इसमें मगन और आनंदित हो। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। ये दिन दिया है परमेश्वर ताकि हम आपकी आराधना करें सच्चाई और आत्मा से। हम आपके चरणों पे आते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि आप भला है, आपकी सुरक्षा हमारे जीवन में काफ़ी है। आपका प्रेम हमारे सोच की अगम है, जिस प्रेम के द्वारा हम प्रेम किए गए हैं। धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए, सारे जीवन के लिए। हर लोगों को नाम नाम लेकर आप जानते हैं। अनुग्रह दीजिए, ये समय में आशीषित कीजिए। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। एक कहानी है लूका का 12 में, शायद लूक चैप्टर 12 का 16 से 20 तक एक धनी व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। वो धनी व्यक्ति के खेत में बहुत उपज आया, ऐसे कि वो उपज रखने के लिए भी जगह नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं कल से घर बनाऊंगा और थोड़ा सा चौड़ा कर दूंगा घर, अच्छे से उपज को मैं रखूंगा। लेकिन उसी रात परमेश्वर उसको आवाज़ देकर बोला, हे मूर्ख, तू क्या चाहता है? कल के लिए तू सोच रहा है, आज तेरा प्राण लिया जाएगा। हे मूर्ख, तू कल के बारे में सोच रहा है, लेकिन आज तेरा प्राण इसी रात में लिया जाएगा। ये दुनिया में यही होता है।
हम सब लोग जानते हैं कल का क्या होगा, हमारा कुछ भरोसा नहीं, ये परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन इसीलिए परमेश्वर का वचन बार बार कहता है, जब तुम्हारा समय है, आज का समय है, और परमेश्वर का वचन जब तुम सुनते हो, अपना हृदय को कठिन मत करो। परमेश्वर का वचन जब तुम सुनते हो तो अपना हृदय को कठिन मत करो। कल बहुत अच्छा संगति था ये जॉनसन परिवार के साथ, तो उसी समय में एक बात बोला था, डू नॉट लिव इन योर पास्ट। आप बीते हुए समय में जियो मत। आप बीते हुए समय को लेकर, अपना सोच में लेकर, अपना हृदय में लेकर जियो मत। जो चीज़ चला गया वो सब चला गया। स्पेशली बुरे चीज़ को हम बहुत समय दोहराते हैं। परमेश्वर कहता है आइजाया में, इवन इब्रानी में बार बार कि मैं तुम्हारा पाप को याद नहीं करूँगा। ये परमेश्वर का वादा है। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण किया है, हम यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण किया है, उसका मृत्यु, उसका दफना जाना, उसका जो पुनरुत्थान को विश्वास किया है, तो हम नए सृष्टि बन गए हैं। 2 कोरिन्थियों का 5:17 में, तो सारे पुराने चीज़ बीत गया, सारे चीज़ चला गया, अभी हम क्यों लेकर उसको चलते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमको कहता है आइजाया में कि तुम वो सारे चीज़ों को याद मत करो। आइजाया में लिखा गया है, आई विल नॉट रिमेंबर योर सिन अगेन। अद्भुत बात है। तो हम परमेश्वर का वचन के ऊपर खड़े रहे। बीते हुए समय को, बीते हुए जो परिस्थिति था, जो समस्या था, या जो टेम्पटेशन था, उसको सोच सोच के हम ना जिए। समस्या था, तकलीफ था, परेशानी था, उसको हम छोड़ दें। इसीलिए पौलुस कहता है, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आई एम प्रेसिंग टुवर्ड्स हेवनली कॉलिंग, फॉर टुवर्ड्स परफेक्शन। मैं आगे दौड़ रहा हूँ, मैं सारे बीते हुए चीज़ को पीछे रख रहा हूँ और आगे दौड़ रहा हूँ। हम बीते हुए चीज़ों को अपने जीवन में ना रखें। कोई भी हो सकता है, वो टेम्पटेशन हो सकता है, समस्या हो सकता है, कोई भी बातें हो सकता है। स्पेशली जो बुरे घटना, बुरे चीज़ हमारे जीवन में हुआ है, उसको लेकर हम ना चले। परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, ऐसा है, आप पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों का 7:30 और 31, तुम रोने वाले हो, तुम दुखी है तो दुखी की जैसा मत रहो। इसका मतलब ये है, तो दुख को लेकर मत चलो। दुख को लेकर तुम जीवन बिताओगे तो और दुखी बन जाओगे। तुम दुख को लेकर मत चलो। या तुम आनंद में है तो तुम इतना एक्टिंग मत करो, इतना मत रहो कि तुम बहुत आनंद में है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जवानों लोग, तुम सोचो कि तुम सिंगल है तो अच्छे से रहो, तुम किसी चीज़ों के प्रति क्रेजी मत हो। और कोई स्वामी है, पति है, तो अपना पत्नी के पास है तो ऐसा भी मत रहो कि ओ मैं ही मेरे पास पत्नी है और नहीं तो और किसी के पास नहीं है। मतलब हमारे चीज़ों को इतना पकड़ के मत चलो। बहुत समय ऐसा होता है, हमारे जीवन से दिखाई देता है कि मैं ही बहुत अच्छा से चल रहा हूँ, मैं ही बहुत दुखी हूँ। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है 1 कोरिन्थियों का 7:30 और 31, आप लोग पढ़ सकते हैं, इफ़ यू हैव द टाइम टू रिजॉइस, लिव लाइक यू आर नॉट रिजॉइसिंग, इन ए सेंस दैट इतना तुम एंटरटेनमेंट मत हो अपना जीवन में। परमेश्वर को देखकर चलो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 1 तीमुथी का 6:17 में, तुम्हारा मन किधर है, धन दौलत में भी तुम्हारा मन मत रखो। मत्ती का 6 में लिखा गया है कि स्वर्गीय वस्तु में तुम्हारा मन रखो। कोलोसियों का 3:2 में लिखा गया है, स्वर्गीय वस्तु में तुम्हारा मन रखो। बीते हुए चीज़ों को तुम भूल जाओ। तुमको याद करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद करना चाहिए, वो परमेश्वर का वचन सिखाता है। तुमको याद करना है तो उसी दिन को याद करो जिस दिन तुम यीशु मसीह को ग्रहण किया, उद्धार पाया। मूसा को परमेश्वर ने कहा, यही दिन को याद करने के लिए लोगों को सिखाओ, क्योंकि इसी दिन मैं तुमको मिस्र का गुलामी से छुटकारा दिया और आगे लाया। ये दिन को तुम मनाओ, आनंद मनाओ, इसी दिन को तुम याद करो। याद करना है तो, लेकिन बुरे चीज़ को, बुरे बातों को, तुम्हारे गलत परिस्थिति को भूल जाओ।
तुमको याद करना है तो यीशु मसीह भी सिखाया वो चेलो लोगों को कि जो चीज़ मैं तुमको बताया हूँ, जो वचन मैं तुमको दिया हूँ, वो वचन को तुम याद करो। इसलिए हम याद करते हैं बीते हुए संडे में, वो बीते हुए महीना में क्या वचन हम सुना था, उसको हम याद करें। हम क्या सुना था, हम क्या सीखा था, उसको हम याद करें। वचन को याद करो। तुम्हारा बीते हुए समय में जो तुम्हारा परमेश्वर बड़ा बड़ा काम किया है उसको याद करो, उसको ना भूलो। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा बड़ा काम किया है। कभी भी, कहीं भी, 1 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, कभी भी परमेश्वर का बड़ा काम को आप देखा है, उसको भूलो मत, उसको याद करो। तुम गलत चीज को लेकर तुम आगे मत बढ़ो। तुमको याद करना है तो ये सारी बातों में मगन रहो। ये था भूतकाल का बात। फिर परमेश्वर बोलता है कि आगे को देखो, आगे का चीज को देखो। कोलोसियों का 3 का जो मैं 2 बोला, जो चिरकाल के लिए रहता है, जो सदाकाल के लिए ऐसा चीज है, उसको तुम मगन रहो, उसमें उसको तुम याद करो। परमेश्वर का प्रेम को याद करो। वी आर मूविंग टूवर्ड्स परफेक्शन। ये बहुत सुंदर है। फिलिपियों का 3 तो 13 और 14 आप पढ़ेंगे। हम आगे बढ़े, सुंदर रीति से हम आगे बढ़े। कैसे आगे बढ़ेंगे? आज का दिन को अच्छे जी कर, आज अभी जो समय है, ये समय को हम अच्छे से इस्तेमाल करें, क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन हमको दिया है ताकि हम आनंद मना सके। हम किस में आनंद मना पाएंगे? परमेश्वर आज का दिन जो दिया है, यस, 2 चीज़ है। पहले हम परमेश्वर में आनंद मनाए, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ साथ है। परमेश्वर ने वो काम दिया है, परमेश्वर ने ये दिन दिया है, परमेश्वर हमको सुरक्षा दिया है। और दूसरा जो है, परमेश्वर का काम जो हमारे जीवन में दिया है, इतना समय दिया है, उसमें हम आनंदित रहे, है ना? तो हम याद करें। हम कौन सा चीज़ को याद करना है, हमको सीखना है। कहाँ पर हमारा मन रखना है, हमको सीखना है। आज का दिन परमेश्वर ने हमको दिया है ताकि हम आनंद मनाए। भजन संहिता 37 का 4 में लिखा गया है, तुम्हारा लालसा जब मेरे पास अच्छा से है, तुम्हारा हृदय जब मेरे और अच्छे से रखा है, तो तुम जो मांगोगे तुम्हारे जीवन में वही मैं कर दूंगा। पढ़िए तो बहुत सुंदर लगा ये, मैं जब मैं पढ़ रहा था। भजन संहिता 37 का 4। यहोवा को अपने सुख का मूल जानो। फर्स्ट यू डिजायर द लॉर्ड। क्या बोला है? यू डिजायर द लॉर्ड, देन व्हाट विल हैपन? और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो तुम्हारा मन को वो पूरा करेगा, तुम्हारा डिजायर को परमेश्वर पूरा करेगा। यहाँ पर 2 वर्ड है। इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में कैसा है देखिए, 37 का 4। Delight yourself also in the Lord and he shall give you the desires of your heart। यहाँ पर 2 वर्ड को अच्छा से देखेंगे तो उसको अलग नहीं कर पाएंगे। नंबर 1 डिजायर एंड नंबर 2 डिलाइट। आप कहाँ डिलाइट होते हैं? आप कहाँ आनंदित होते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है पहले परमेश्वर में तुम आनंद मनाओ। जब तुम परमेश्वर के पास आते हो और पहले धन दौलत मांगते हो, उसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो डिलाइट, जो तुम्हारा जो आनंद परमेश्वर में पहले नहीं है, वो धन दौलत में है। यहाँ पर लिखा गया है डिलाइट योर सेल्फ ऑल्सो इन द लॉर्ड। पहले परमेश्वर में आनंद मनाओ। जब तुम परमेश्वर में आनंद मनाना सीखोगे तो तुम्हारा सही इच्छा होगा परमेश्वर के चरणों पे। तुम सही रीति से क्या करोगे? मांगोगे तो परमेश्वर तुमको आशीष करेगा, तुम्हारा मन को वो पूरा करेगा। तो परमेश्वर आज का दिन दिया है तो हम आज अच्छे से जीने के लिए प्रयत्न करें। परमेश्वर का महिमा हो कि परमेश्वर मुझे आज का दिन दिया है, तो हम निर्णय ले परमेश्वर आज मैं नया जीवन शुरू करना चाहता हूँ। हम निर्णय ले परमेश्वर मेरे बीते हुए समय को मैं भूलना चाहता हूँ। अभी मेरे मन को, मेरे हृदय को आपकी ओर रखना चाहता हूँ। मुझे मदद कीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार मैं चल पाऊँ। हम आज निर्णय ले। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम निर्णय लेकर अच्छे से जिएंगे, परमेश्वर हमको इनाम देगा। इसीलिए दिन दिन करके परमेश्वर को देखते हुए हम आगे बढ़े।
देखिए कुछ बातें ऐसा है, जो विश्वासी अपने जीवन में अच्छे डिसिप्लिन रखता है, पूरे डेडिकेशन में, पूरे सेल्फ कंट्रोल में, आत्मसंयम में डिसिप्लिन होकर जब आगे बढ़ता है, उसको एक स्पेशल क्राउन मिलता है। उसका नाम है इनकरप्टिबल क्राउन, जो मुकुट मुरझा नहीं जाएगा। हर विश्वासी के लिए अलग अलग इनाम है। ये कौन सा विश्वासी के लिए है? जो विश्वासी डिसिप्लिन है, सेल्फ कंट्रोल है, पूरे डेडिकेशन है परमेश्वर का महिमा के लिए, उसको ऐसा मुकुट मिलेगा जो मुकुट मुरझा नहीं जाएगा। दूसरा देखिए, और वो विश्वासी के लिए अलग एक क्राउन मिलेगा और एक आनंद का मुकुट मिलेगा। जो विश्वासी दूसरे लोगों को यीशु मसीह के पास लेने के लिए मदद करेगा। चलो भाई चर्च को थोड़ा चलो, चर्च में तुमको आनंद मिलेगा। चलो भाई यीशु मसीह के पास आओ, पापों का क्षमा मिलेगा। परमेश्वर आपको प्यार करता है भाई, परमेश्वर आपको प्यार करता है बहन, जब हम दूसरे को मदद करते हैं, है ना। तीसरा क्या है? आपको धार्मिकता का मुकुट मिलेगा। यीशु मसीह हमको धार्मिकता में गिनती में लाया है। जब यीशु मसीह मर गया क्रूस पे अपना लहू देकर, तो अपना धार्मिकता हमारे पर लाया है, हमारे सारे पाप उसके पर लिया है, लेकिन उसका धार्मिकता हमको दिया है। तो वो धार्मिकता का जीवन जब हम जिएंगे ना, धार्मिकता का मुकुट मिलेगा। सब लोगों को सेम इनाम नहीं मिलेगा। जो विश्वासी धार्मिक जीवन बिताएंगे उनको धार्मिकता का मुकुट मिलेगा। वो विश्वासी जो बहुत टेम्पटेशन में गुजरते हैं ना, बहुत परीक्षा में गुजरते हैं, वो लोगों को अलग मुकुट मिलेगा। उसको बोला जाता है जीवन का मुकुट, क्योंकि वो लोग तकलीफ सह रहे हैं, परेशान सह रहे हैं, परमेश्वर उनको अनुग्रह देगा, है ना। उसके बाद महिमा का मुकुट जो परमेश्वर का दास लोगों को मिलेगा, जो लोग परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं, उद्धार की कार्य कर रहे हैं, वह चर्च को अगुवाई कर रहे हैं, वो लोगों को परमेश्वर महिमा का मुकुट देगा। तो हर विश्वासी अलग अलग इनाम मिलेगा। तो आज हम निर्णय ले कि हमारा जीवन बहुत सुंदर करे मसीह में। परमेश्वर हमको मदद करेगा, विश्वास जोग्य कहेगा, मेरे विश्वास योग्य दास हूँ, आओ प्रवेश करो, तुम्हारे लिए जो मैं बनाया हूँ बहुत सुंदर जगह, परमेश्वर कहेगा। तो परमेश्वर हमको मदद करेगा, वो उसी दिन हम आनंद मनाएंगे। तो आज का दिन हम अच्छे से जीने के लिए निर्णय लें। आज का दिन फिर हम रिवाइव हो, फिर हम रेस्टोर हो, फिर हम परमेश्वर के पास समर्पित हो। और कोई हमारे बीच में है यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, तो हम बोलना चाहते को यीशु मसीह को आज ग्रहण कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमारे सारे पापों धो जाता है। वो मृत्यु को अपनाया हमारे पापों के लिए, वो दफना गया और तीसरा दिन जिंदा हुआ। उसको आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। और आप विश्वासी हैं तो आज निर्णय लीजिए कि एक अच्छा कर्म करके वो परमेश्वर को देखते हुए हर दिन आप नया जीवन में जिएंगे। परमेश्वर आपको इनाम देगा। इब्रानी का 6 का 9, 10, 11, 12 में आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर अन्याय नहीं कि वो आपका अच्छे कर्म को वो भूल जाएगा। वो न्यायवान परमेश्वर है। आप जब आपका हाथ बढ़ाते हैं, आपका हृदय बढ़ाते हैं, आपका कदम बढ़ाते हैं, आप चर्च आते हैं, लोगों का सेवा करते हैं, एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, परमेश्वर अन्याय नहीं है कि वो आपका अच्छे कर्म को भूल जाएगा। आपका हर डिटेल्स, हर काम को वो याद करता है। वो आपको प्रतिफल देगा, इनाम देगा, आशीष करेगा। मलाकी में लिखा गया है कि परमेश्वर एक किताब रखा है कि जो लोग परमेश्वर को भय आदर करते हैं उनके लिए ये स्मरण करने का किताब रखा गया है, उनका नाम लिखा जाता है। तो आइए हर दिन हम परमेश्वर के लिए ऐसे जिए कि हमारा इनाम और बढ़ते जाए, परमेश्वर हमको इनाम देगा। आमीन। तो आज का दिन हम निर्णय लें, परमेश्वर हम सभी को आशीष करें। आइए प्रार्थना करते हैं, अपने अपने जीवन को समर्पित करते हैं। और परमेश्वर हमारा हृदय को जानता है। जब आप हृदय से ठान लेंगे परमेश्वर के लिए जीने के लिए, जब आप हृदय में ठान लेंगे यीशु मसीह के पास आकर शरण लेने में, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। वो अन्याय नहीं है, वो याद करता है, वो जानता है आपको नाम लेकर। परमेश्वर आपको बुलाया है, वो पवित्र ठहराया है। परमेश्वर आपको जानता है, वो धार्मिक ठहराया है। तो आइए शरण ले यीशु मसीह के चरणों पे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर,
ये सुंदर समय के लिए परमेश्वर, आपने कहा है एजेकियल का 36 का 26, मैं आपको नया हृदय दूंगा, कोमल हृदय दूंगा, नरम हृदय दूंगा। परमेश्वर हमको मदद कीजिए आपका वचन को लेने के लिए। धन्यवाद देते आज के दिन के लिए परमेश्वर, जो वचन हम सुना परमेश्वर, बीते हुए समय को हम भूलकर आगे हम दौड़े परमेश्वर। आज का दिन हम ऐसे सुंदर जिए, धार्मिकता का जीवन जिए, पवित्रता का जीवन जिए, अच्छे कर्म उत्पन्न हो हमारे जीवन में, आपको महिमा मिले हमारे जीवन के द्वारा, यही हमारा प्रार्थना है। दयालु परमेश्वर आशीषित कीजिए ये झुंड को, अगुवाई कीजिए परमेश्वर ये झुंड को, हर भाई बहन को आशीषित कीजिए। कोई यहाँ पर किसी प्रकार का बोझ लेकर आए हैं यीशु मसीह, आप जानते हैं, नाज़रेती यीशु मसीह के नाम से कार्य कीजिए परमेश्वर, नाज़रेती यीशु मसीह के नाम से आशीषित कीजिए। दयालु परमेश्वर आपकी दया हम चाहते हैं हर समय, अगुवाई कीजिए। धन्यवाद देते हमारी प्रार्थना विनती सुनने के लिए। आगे का हर पल को हम आपके हाथों पे सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।